Well, it is day 4 of Mirror Now's campaign, Old Car Not Bekar. Delhi government is conducting a drive to seize overaged vehicles in order to curb pollution. Cars are being towed away without notice, infringing upon the rights of the car owners and trampling on the rights of the citizens. Not only are vehicles being impounded from public spaces, but also from gated communities. Today, our focus is on senior citizens who are sharing their plight with us. All right, at this point in time, I have been joined by two such people who are direct victims of this particular action by the Delhi government. We will open this discussion with them. Colonel S.S. Phogat is a resident. He's joining us on the broadcast. And Kiran Saini, she is also a resident of Delhi, or also joining us. Thank you for being with us on Mirror Now. Colonel S.S. Phogat, let me begin with you. Help us understand, what did you go through? How was your situation? How was your car taken away? Let me make it very clear. We all citizens want to control pollution, but a policy of one size fits all is not to be enforced. And the way it is being enforced, I had one Duster, Renault Duster. It had hardly done 40,000 kilometers. I had to just dump it so that I am not in conflict with the law. I have lost 12.5 lakh rupees. The car had hardly done 40,000 kilometers, and the way the cars are being lifted from the front of the houses of citizens, it reeks of high-handedness and arrogance on part of the authorities. They must come out with a practical solution. Let the cars which are nearing 10 and 15 years limit, let them undergo stringent inspection by the RTO. And those cars that are found fit, let their RC be extended. And who is gaining by scrapping these cars? We know who are gaining, but it is a loss of asset to the nation. Thank you. Right. Right, Colonel Phogat, stay on with us. Let me go across to Kiran Saini ji. Kiran ji, how was your situation? You know, how was your car taken away from you? How do you view this action by the Delhi government? Okay. Hello. Hello. Right, Kiran Saini, we can hear you. Please go ahead with your experience. हाँ मैडम, ऐसा है कि 14 तारीख को ये 5, 6 के 7, 8, 9 पुलिस वाले थे जो ऐसे बाउंसर टाइप थे। इन्होंने बिना हमें इन्फॉर्मेशन दिए, मैं बाहर सब्जी के लिए निकली तो इन्होंने ये हमारी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, कहते जी हमने गाड़ी उठा के लेके जानी है और अभी लेके जानी है, अभी गाड़ी लेके जानी है। मैंने बोला जी देखिए, मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मेरा बेटा घर पे नहीं है, आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने बेटे को फ़ोन करूं। मैंने फ़ोन किया, बेटा कहता मम्मी मैं इस समय गुड़गांव में हूं, मुझे आते हुए घंटा लग जाएगा, घंटा डेढ़ लग जाएगा, आप इनसे बोलो, थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि थोड़ी टाइम रुक जाएं। मैंने एक ऑफिसर के पास जाके रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप थोड़ा टाइम दो, मेरा बेटा आ रहा है रास्ते में। आपको भी पता है कि गुड़गांव से रजौरी आने के लिए कितना टाइम लगता है। पर ऑफिसर मुझे यही कहते रहे, माता जी हम तो 1 मिनट के लिए नहीं रुकेंगे, हम तो गाड़ी अभी लेके जानी है। मैंने बोला भाई रुको। फिर बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मैंने दिल्ली एंटर कर लिया है, आप थोड़ा रुक जाओ। कहते नहीं जी। फिर एक इनका बंदा था, पता नहीं कौन था वो, उसने मेरा फ़ोन ले लिया। कहता जी लाओ मैं आपके बेटे से बात करूं। वो मेरा फ़ोन लेके इधर उधर पता नहीं कहाँ निकल गया। मैं देखूँगा मैं क्या बात करूं किससे। पर ऑफिसर किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। वो कहते जी अभी के अभी गाड़ी लेके जानी। मैं क्या बोल, आप रुको, मेरा तो इसमें सामान भी पड़ा हुआ है। एक कहता नहीं जी देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, गाड़ी के अंदर एक डस्टर है और एक आपका कुशन है और कुछ नहीं। मैं क्या बेटा मुझे ये नहीं पता कि डिक्की में क्या है, डिक्की में तो बच्चा ही आएगा ना, वो खोलेगा, आप तब गाड़ी ले जाना। पर वो इतने
क्या बोलूं कि हम भी एयरफोर्स के रिटायर बंदे हैं, पर ऐसा पुलिस वालों का बिहेवियर आज तक मैंने नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में जैसे मैंने देखा। मैं भी घर पे अकेली थी, देखो उस दिन कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार था, मैं खुद घबर आ गई। फिर भी मेरे आसी पड़ोसी वालों ने मुझे काफ़ी साथ दिया, सारे खड़े हो गए। पर ये कैसी पुलिस है और कहाँ की पुलिस थी कुछ नहीं पता। उनको किसी सीनियर सिटीजन से बोलने की तमीज़ भी नहीं थी कि कैसे बोला जाता है। मैंने उनको ये बोला किरण जी, कि आपके साथ आप मिसबिहेव यहाँ किया गया कोई है और और गाड़ी, हरास जहाँ आप किया कहते जी गया है, हमने आप वहाँ ये भी कह रहे जाना है, हैं। हमने वहाँ भी जाना है। जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर ये मुझे ये एक पेपर दे गए, कहते जी इस पे साइन करो। मैंने कहा रुको, मेरे हस्बैंड आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, वो साइन करेंगे। कहते नहीं जी अभी साइन करो। उसने वैसे साइन कराई, जैसे साइन करे गाड़ी के ऊपर रख के आगे से क्रेन वाले ने गाड़ी उठा दी। मैं फिर हैरान हो गई, मैं कहा ये क्या हुआ है। कहता नहीं जी अभी हम वेट नहीं कर सकते, हम वेट ही नहीं कर सकते। मैं कहा भैया इतनी क्या ज़रूरी है कि अभी आपने गाड़ी लेके जानी, हमने कौन सा क्राइम किया है यहाँ पे, हैं आप इतना भी नहीं रुक सकते। मैं क्या, मैं एक एयरफोर्स की वाइफ होने के नाते मैं पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप तो चढ़े जा रहे ऊपर। उन्होंने जी पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, जी किसी की बात नहीं सुनी। जी मैं क्या इसमें सामान निकालना है। कहता जी सामान निकालने के लिए जी। आप अपने बेटे को दिल्ली कैंट भेजिए। मैं क्या चलो मैं मान गई, चलो बेटा जी आया, वो किरण रास्ते जी, में मैं था मैं आपके तो पास वो मुझे लौटूंगी, फ़ोन मैं कर आपके रहा था, पास पर मेरा लौटूंगी। फ़ोन आपका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्यूअर्स, वी आर आल्सो गेटिंग कॉल्स। लेट मी गो अक्रॉस टू मिस्टर Manish who is joining us. Mr. Manish, go ahead, share your experience and your thoughts about this particular move that has been done by the Delhi government. The people that we are speaking to, they are saying that they have been harassed, and this is a misbehavior also has been done on the part of the police who have come and picked up their vehicles. Absolutely. It's like robbing of their vehicles. Some legal action should be taken against them. And secondly, they should work on some solution by converting the old cars to electric car or something through some foundation. You know, this is like absolutely horrible which happened in Delhi right now. So we have to plan out on what action can be taken against the government who have harassed these ladies, who are old ladies. So how we can just help these people, by stopping what I've done. This is happening all over, I think, India now. It might happen probably, but Delhi, what has happened without the knowledge and forcefully getting a signature done and all that, that's very bad, very sad. It's horrible to see. She must have got a shock, it's like robbing off, So what action can be taken, we have to plan out now. Or solution-based, how to convert those old cars to electric cars, on through a foundation or something. They should work on some solution because people won't sell their old cars, right? They're using it, even if it's Delhi or what. That's what I want to say. Thank you. All right, Mr. Manish, thank you for joining us here on Mirror Now. Mr. Jakpal is also joining us from Rohtak. Mr. Jakpal, go ahead and give us your thoughts. Good afternoon. I'll say 3 points. Number one is the country is for the rule of law. Rule of law says doctrine affodi altem paltem, that issue a show cause to the gentleman whose interest is to be adversely affected. After the show cause is given, once he replies, then you have to apply your mind, pass a speaking order giving adequate time. Now the people are asking, what should we do? What you should do is take their photograph. All the team that you see, take their photographs, and it is a case of dacoity during daylight. Article 21 says that you have the right to life and livelihood. Stay in high separate. You can't be in high separate when somebody picks up your car and it is not their car. Without the money being raised from this car, these people shall never be able to buy a new car. Thank you for giving me an opportunity. Right, Mr. Jakpal, thank you for speaking with us here on Mirror Now.
All right, let me go across to Colonel S.S. Phogat, who is with us on the broadcast. Colonel Phogat, when it comes to the law at this point in time acting, for the rights of the citizens, many people that we have spoken to have said that this is against the law. What are your thoughts? Ma'am, no citizen of the country is against the law. It is the procedure in which it is being enforced. It is the problem is with the way the citizens are being dispossessed of their lifetime savings worth a car. And are there no other pressing problems with the government of Delhi except picking up these cars forcibly from the houses of the residents? There are so many other problems which are galore. There is garbage piling up everywhere. There is a congestion on the roads everywhere. So they should pay more attention to development of Delhi rather than forcibly picking up cars from the residents. And let there be some practical solution to this. Let these cars be converted into electric cars. It is a waste of our wealth of the nation. Really said Colonel Phogat. Let me go across to Kiran Saini ji, who was sharing her experience. Kiran ji, did you reach out to somebody, because you were harassed by the policemen there who did not allow you to speak to your son when you were trying to speak to him? They forcibly took away your car, and you being a senior citizen, a woman alone at home at that point in time, did you file a complaint with any authority, any official? देखो जी, उनका सबके ये नाम लिखे हुए हैं पेपर पे। ये तो फिर मेरे घर वाले, जो मेरे हस्बैंड, जो मेरा बेटा, वो डिसाइड करेंगे हमने क्या करना है। और ये हमें एक नंबर दे के गए हैं, स्टैंप लगी हुई है स्क्रैपर की। वो फ़ोन उनका हमने 15-20 बार कर चुके, ज़्यादा ही कर चुके, कोई फ़ोन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ना उन्होंने हमें मेरा नंबर ले गए हैं, मुझे भी कोई फ़ोन नहीं उन्होंने किया कि आपने अपना सामान कहाँ पे लेना है। उन्होंने अब वहाँ बेटा गया दिल्ली कैंट पे, वहाँ कोई गाड़ी नहीं। वो कहते जी आपकी गाड़ी यूपी में बागपुर वहाँ पहुँच गई, आपने अपना जो सामान लेना वहाँ जाके सामान लो। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी गाड़ी के ये कार्ड होते हैं, देखो इसमें 26 तक हमारी गाड़ी वैलिड है, 2026 तक। पता नहीं इनका क्या दिमाग काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कैसे गाड़ियां उठा के लेके जा रहे। कम से कम ये तो सोचें कि घर में कोई जेंट्स नहीं है, जेंट्स को आने को टाइम तो दो। और बेटा कह भी रहा है कि मैं दिल्ली एंटर कर गया हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। और पुलिस को पता नहीं किस बात की हफड़ा दफड़ी थी कि गाड़ियां आज की अभी के अभी लेके जानी है। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कैसी गवर्नमेंट है, कैसी अथॉरिटी है, ये कैसे काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता जी। और सबने अपने अपने मार्क्स बांधे हुए थे, किसी की पहचान नहीं हो रही थी कौन है कौन नहीं। हाँ जी, मैं तो बात एक की आपके लोकेलिटी में और किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप आगे हुआ। वो बेचारे हार्ट पेशेंट है, वो 2 घंटे गाड़ी में बंद रहे। वो 2 घंटे गाड़ी में बंद रहे कि मैं अपनी गाड़ी नहीं जा दूंगा, मुझे बात करने दो, मेरे बेटे को आने दो। वो भी यही कह रहे थे कि देखो दोपहर को ना कोई जेंट्स का रोता, रिटायर बंदे घर पे होते हैं, ठीक है, और उनका बेटा भी घर पे नहीं था, पर इन्होंने इतनी जबरदस्ती की, सबकी गाड़ियां उठा रही, बाइक उठा के लेके जा रहे हैं। अभी हम तो कहीं बाहर नहीं निकले, जब गली मोहल्ले में जाएंगे फिर पता चलेगा कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ है। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि ऐसा ये सीनियर सिटीजन के साथ ये कह रही थी जी बहुत अच्छी गवर्नमेंट आई है, बड़ों बूढ़ों मातों का सबका लिहाज करेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी उठा के ले जाए। हमें पहले इन्फॉर्मेट करते हैं भी हाँ जी आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका कोई ना कोई बंदा घर पे रहेगा, हम फलां दिन आएंगे, फलां टाइम पे आएंगे। एक ही दम सडनली, वो तो बेल भी नहीं उन्होंने बजाई, डोर बेल भी। मैं तो सडनली सब्जी के लिए बाहर गई कि सब्जी वाला आया होगा, मैं सब्जी लेनी है। तब मैंने देखा भाई क्या हो गया,
मोहल्ले में क्या हो गया, इतनी पुलिस आ गई। ये तो इनका हिसाब है, कैसे करेंगे बताओ। और ये नंबर दे गए हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सबकी गाड़ियां उठा उठा के ले जाते हैं। इनके पास क्या करना, गवर्नमेंट को खुद भी पता है कि वो गलत काम कर रही है। गवर्नमेंट को खुद पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर इन्होंने आना हमारे पास वोट लेने, फिर हमने वोट देनी, पागलों की तरफ फिर पागल बनने एक बार। और इतने बड़ा कांड कर रहे हैं, गाड़ियां लेके जा रहे हैं, फोन नंबर खाली एक है इनके पास, और वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। अब बताओ मैं कहाँ फोन करूं, किस फोन पे करूं कि पूछूं जो मेरा गाड़ी में सामान पड़ा मैं कहाँ से लेके आऊं, कहाँ जाऊं। दिल्ली कैंट गए वानी, अब हम यूपी में जाएं। हमारी तो है भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाड़ी है, रजिस्टर्ड हरियाणा की गाड़ी है, और दिल्ली हमने रह रहे हैं, दिल्ली यहाँ से गाड़ी चलाएंगे ना, तो फिर ये दिल्ली हरियाणा की गाड़ी ये यूपी में कैसे ले गए, और मुझे पागल बना के गए जी कैंट आ जाना। इस पर्चे का क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या करूं, जिसका नंबर ही नहीं पता नहीं इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। जी, तो गुमराह किया जा रहा है। किरण जी, आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है आपको, आपकी जो गाड़ी है उसको उठा लिया गया है फोर्सिबली, और वो भी जिस वक्त आप घर पे अकेली थी, आपके बेटे से, आपके हस्बैंड से बात करने की इन्होंने अनुमति नहीं दी। किरण जी, हमारे साथ बने रहिए। लेट मी गो क्रॉस टू वन ऑफ कॉलर्स हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर, गो अहेड एंड गिव अस योर थॉट्स। हेलो। Right, we can hear you, sir. Please go ahead. Ashok ji, please go ahead. हाँ, ये एक भारत स्क्रैप है मायापुरी में। ये साउथ दिल्ली की सारी गाड़ियां वहीं ले जाते हैं और वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं और पैसे खाते हैं। तो ये, और सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए इनके ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट और भारत स्क्रैप के ऊपर। जी अशोक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका एक्सपीरियंस और आपके थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई वुड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेक द अपॉर्चुनिटी to thank our guests who had joined us, the victims who have seen it live in front of their eyes, Colonel SS Phogat and Kiran Saini, residents of Delhi. Thank you both of you for joining us on Mirror Now and giving and sharing your experience and your demands from the government.